Assalamu alaikum, everyone. Here we are again from Positive Impact, following on from our talks on the changing landscape due to COVID 19. We have invited quite a lot of industry leaders to talk about how prepared we are to shape into that landscape. So now we are starting another talk series, and it is basically aimed at various industries. And we will be inviting experts to talk about how we can progress into this new world, how robust strategies we already have, and what we need to do for the futuristic Pakistan. So at the moment, Pakistan is listed as one of the largest growing population for youth. There are 63% of people lying in the age brackets of 15 to 33 years. This is a very big number of people of Pakistan who are considered as youth workforce. So now it's really up to us whether we want to use and look at this youth population as a ticking bomb, or we consider them as a human capital for our nation. The only way to progress towards socio-economic development is to use this human resource strategically and refine them and shape them into a needful workforce for the country. So obviously there is a big need of the throughputs on creating capacity building, on looking into new ways of skill development, looking into new needs of the industry, and preparing these people to fulfill those needs that are required these days. To shed light on this very important area, today we have invited Mr. Junaid Jumani. He have an experience of working for 18 years in various organizations. At the moment, he's serving AGP Limited as HR and Administration Director. AGP Limited is a pharmaceutical company, and it's one of the fastest growing pharmaceutical company in Pakistan. He have quite a rich experience and led on various HR related arena uh, and various other projects. He have specialized qualification in HR. He's also well versed and qualified in business and law. He has greatly contributed in specialization areas of organizational development, talent management, performance management, and compensation and succession planning. He's very passionate about developing the workforce. He believes in education and development. His direction in AGP has led the organization into the most forward-looking workforce. So today we are going to be hearing from him to see what were his challenges, what were his contributions, and how he see the future of the workforce development in Pakistan. So, Assalamu alaikum, Junaid. Thanks for joining us today. Islam. How are you, Hena? How is everything? Everything is good. We have exceptionally hot summers in UK Okay. for a change. We are now we'll be heading to few rains, which is Yeah. starting from today's night, inshallah. Yeah. And I think then we'll be having a good weather. Hopefully, So we yes. came out from the hot weather and we are heading to the pleasant weather now. So looks like the east and west has swapped the weathers, isn't it? Yes, describe the weather. Yes. So So yeah, so I would like to start our session, and I like to keep it as informal as possible, and have your experience shared with us as much as we can. So just tell me briefly about your journey and your passion in HR. okay. Thank you, Hina, for giving me this opportunity. I'm very thankful to you and the HR, the Positive Impact, for providing me this opportunity to express myself. Uh, I'm an HR professional with over 18 years of experience, uh, SHRM certified, and I am from the first batch of global diversity and inclusion benchmark champions. So. My passionate area is OD, organizational development, and I have done lots of work here and through many companies when I was in consultancy.
I am one of the professionals in Pakistan that got an opportunity to work with World Bank for their projects, which were related to government organizations like EOBA, etc. And I worked with so many other uh, companies which are of FMCG, oil and gas, etc., etc. And for last 12 years, I'm with the AGP, which is a fastly growing pharmaceutical industry, and we are, average growing by 20 to 22% every year, which is a very good number. So that's a brief of my side. So hand over to you again. Okay. So thank you, Jumani. We are going to now talk about few of the questions, right? Okay. So my Okay. first question with you is कि जो post COVID landscape है पाकिस्तान में, obviously it has changed as it has been changed all over the world, and obviously there is a futuristic element for workforce development as well there. I would like to know from you कि key challenges क्या है workforce development के after in a post COVID era. देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि what is changing to this landscape. ठीक है. सबसे पहले तो अगर हम देखें तो this COVID has changed many things. लोग कहते हैं कि how it is changed to everything. मतलब इसने कुछ change नहीं किया. The things are the same. उनके करने के तरीके चेंज हो गए. देखें, पहले हम कभी मास्क नहीं पहनते थे. अब now we have to live with mask at least for certain time. जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती थी, कि फ्लू आया था तब भी ऐसा ही था. अब दिस इज द न्यू नॉर्मल. लोग न्यू नॉर्मल कहते हैं, मैं कहता हूँ इट्स नॉट न्यू नॉर्मल, इट्स नॉर्मल नाउ. नथिंग इज न्यू नाउ. Everything is it has engraved into us now. So we need to see what are the things that are changing to workforce development, etc. First of all, हमारे जो काम करने के तरीके थे, that have changed. जो पहले की एक अकाउंटेंट की जॉब थी, आज इज नॉट द सेम बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एसेट्रा एसेट्रा. अब सिर्फ एचआर प्रोफेशनल की आप बात कर लें, जो कि पहले शायद एक छोटी सी कोई क्वालिफिकेशन लेके आ जाता था, कोई भी किसी को भी बना दिया जाता था, वो पर्सनल कहलाता था उस वक्त. टुडे दिस पोजीशन इज कंसीडर्ड एज अ बिजनेस पार्टनर, और उसको बहुत वैल्यू दी जाती है. बोर्ड में जो 2 कमेटीज बनती हैं, इसमें एचआर हेड की एक कमेटी होती है, एचआर एंड कंपनसेशन की एक कमेटी होती है, और दूसरी ऑडिट की. इट हैज गिवन दैट मच इंपॉर्टेंस. तो थिंग्स हैव चेंज नाउ. ऑक्यूपेशंस चेंज हो गए हैं, डायनामिज्म चेंज हो गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज चेंज हो गई हैं, डेमोग्राफिक्स एंड जॉब सेटिस्फैक्शन हैज चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके बदल गए. तो इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग. तो लाइकवाइज वर्कफोर्स डेवलपमेंट की जो चीजें थी, जो पहले क्लासरूम में हो जाता था, आपको सेशन करा लेते थे कंपनी में, या सेशन में किसी को भेज देते थे, हम शायद ये समझ रहे हैं कि इस कोविड ने चीजें चेंज की. नहीं, वो वैसे भी चेंज हो रही थी. लोग अपने लिए कन्वीनियंट लर्निंग ढूंढ रहे थे. मैं तो अपने लिए देखिए यही सोचता था कि मुझे कोई ऑनलाइन वेबिनार मिल जाए, जहां मैं यहाँ अपने ऑफिस में बैठे हुए या कहीं घर पे बैठे हुए उस पर रजिस्टर करूं, क्लिक करूं, ज्वाइन करूं और उसको फिनिश करूं. ठीक है. अब नाउ दिस कोविड हैज एग्नेट दीज ऑल थिंग्स. इसने हमें मजबूर कर दिया कि जाओ अब फौरन से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो. वी वर नेवर थॉट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम. भाई मेरी इंडस्ट्री ने तो देखें बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड है, मगर बहुत कम लोग ऐसा सोच रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम भी कोई चीज होती है. नाउ इट हैज चेंज एवरीथिंग. अब हम घर से काम करने का सोच रहे हैं. अब मुझे ये लगता है कि यार घर पे तो भेज दिया था, घर से वापस कैसे लाना है मुझे. बिल्कुल, ये की चैलेंज. आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया था मैंने, कॉल लेके दिखा रहा हूं. तो दिस इज वन मोर थिंग. ठीक है. तो नाउ द एलएमएस ऑनलाइन पोर्टल्स जो हैं, ये वर्कफोर्स डेवलपमेंट की जो काम को है, दे विल टेक इट ओवर. मुझे ये लग रहा है और ऐसा हो रहा है. अब कोई अगर जो कंपनीज मुझे ट्रेनिंग के लिए बात काम करती थी, वो कहेंगे सर आप क्या आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. मैंने खुद अपने इन हाउस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे काम शुरू कर दिया है फैब से, और वी आर बीइंग वेरी सक्सेसफुल. हम खुद कर रहे हैं, खुद मॉड्यूल्स बनाते हैं और एम्प्लॉयज से शेयर करते हैं. सो दे आर अटेंडिंग
to those modules as per the convenience, and then provide their feedback at the how they have felt about the training, etc. The other thing which is changing to the workforce development is the world is changing a lot. लोग अब कहते हैं भाई why you are talking of only your area. आप टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की बात सिर्फ आप अपने एरिया में क्यों करते हैं? आप तो वर्ल्ड के टैलेंट की बात करें, आप बात करें डाइवर्सिफाइड टैलेंट की एंड ऑफ द इंक्लूजन. देखिए आप बात लोग कर रहे हैं, आप डाइवर्सिफाइड टैलेंट की बात करें और उनके इंक्लूजन की बात करें, क्योंकि सिर्फ डाइवर्सिफाइड टैलेंट से या डाइवर्सिटी लाने से आपका मसला हल नहीं होता. यू हैव टू बी इंक्लूसिव टू, ताकि वो जो टैलेंट आप ला रहे हैं उसको आप वो एनवायरनमेंट तो दें कि वो इंक्लूसिव हो सके आपके एनवायरनमेंट के अंदर, सो दैट यू नो यू नीड टू चेंज योर प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंगली. तो वो भी आपके वर्कफोर्स डेवलपमेंट के डायनामिक्स को चेंज कर रहा है. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स लाइक अब एक रिक्वायरमेंट आई है वर्ल्ड में, मैं ये देख रहा हूँ कि वो कंपनीज जिनमें वुमेन सीनियर पोजीशंस में है उनको ज्यादा वेटेज दिया जाता है. ठीक है. देखिए पिछले कुछ सालों में अगर मैं अपने कंपनी को देखूं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीमेल्स इन माय कंपनी. इस साल मैंने कोई 12% से अभी तक ग्रो किया है इसको, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई 15% इसको क्लोज करूं. तो ये भी एक बड़ा एन एरिया जहाँ पे आपको अपनी, पहले हम खवातीन को या फीमेल्स को हम सोचते थे नहीं यार ये बेचारी कहाँ करेगी, इट्स नॉट लाइक नाउ. अब आपसे बोर्ड लेवल पे भी कहा जाता है कि यार यू शुड थिंक ऑफ अ वेज जहाँ पे आप उनको ऊपर पोजीशंस पे लाएं. मेरी सीईओ जो है शी इज फीमेल. ठीक है. और हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल हेड्स हैं 2, वो भी फीमेल हैं, एंड वी आर taking more females who can be trained for senior positions, and then we can give them the bigger roles in the organization. So things are changing a lot. इस तरह से हमारा workforce development भी change हो रही है and everything is changing. बिल्कुल. with that. और ये जो आपने डाइवर्सिटी की बात की, अक्सर मेरे जो लेक्चर्स हो रहे होते हैं, ऐसे आपको पता ही है मैं ऐसे 8000 का कोर्स डिलीवर करती हूँ वर्ल्ड ओवर. सो वी टॉक अबाउट अ टर्म एंड इट्स कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जिस वर्कफोर्स में जिस पर्टिकुलर एलिमेंट या पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव की कमी होती है, फॉर एग्जांपल वी हैव लेस फीमेल्स, जैसे आपने एग्जांपल दी, सो वी create opportunity for females, but we are not discriminating. It's a positive discrimination. We want that diversity to be added to the workforce. आप बिल्कुल सही जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिस हिना. देखिए मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, हम वी आर नॉट जेंडर बायस्ड जी, वी आर टैलेंट बायस्ड. ऐसा ही है. मैं अभी लास्ट मेरी कॉन्फ्रेंस में वहां पे कुछ आई वाज एड्रेसिंग टू पीपल. मेरा कहना यही है, देखिए आप यू वोंट से दिस दैट देयर इज अ फीमेल और मेल. आप टैलेंट की बात करें, देखिए टैलेंट पे कंपटीशन करें, brought in talent to the front so that the organization can flourish. ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. अब मैं तो आपसे थोड़ा सा आगे की बात करूंगा. आप शायद देखिए मैं तो कहता हूं कि व्हाई नॉट ट्रांसजेंडर्स. बिल्कुल, मैंने तो अपने यहाँ एक ट्रांसजेंडर भी रखा. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. व्हाई नॉट टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी. And then people who have compromised life, for example, certain disabilities, so they can still be as productive as a yes. blessed person. देखिए आप सोचे ना हिना, हमने सोचा नहीं था आज से 10, 12, 15 साल पहले कि हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात कर रहे होंगे. हाँ बिल्कुल. Too much in. Yes. I'm from the first batch. मेरे बाद भी तो बैचेस हुए हैं ना. I'm of the first batch of diversity and inclusion benchmarks जो चैंपियन है उसमें मैं from the first batch. मेरे बाद भी तो हुए हैं. And हर साल हमारे यहाँ इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है. And I won the award last year for diversity and inclusion. Very good, very good. अच्छा चलें अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. With your wealth of experience and knowledge and your forward thinking, आपके ख्याल से strategic direction जो HR की है वो क्या होनी चाहिए into shaping a
फ्यूचरिस्टिक वर्कफोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अब हमारी वर्कफोर्स इज नॉट कन्फाइंड टू only geography of Pakistan. We are very globalized now. Everything is, we have to look ourselves as a part of the whole of the globe. ठीक है, तो उसके हवाले से आप कुछ बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा जिस भी फोरम पे मैं आया, मैंने लोगों से कुछ बातें की, यहाँ मैं मुझे वो रिपीट करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहले तो एचआर प्रोफेशनल को ये समझ लेना है कि एवरीथिंग हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड विद द चेंज ऑफ वर्कफोर्स एंड इकोनॉमी। बिल्कुल। जो आपने बात की थी कि वर्कफोर्स पहले आपकी ज्योग्राफी की होती थी, अब इट्स नॉट। आपको वो रिसोर्सेज चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। यू आर गेटिंग दैट कॉम्पिटेंस और स्किल्स फ्रॉम एल्सवेयर वेरेवर यू फाउंड देम, और आप भेजते भी हैं लोगों को बाहर। तो व्हाट वी नीड टू थिंक, व्हाट वी नीड टू, एचआर प्रोफेशनल्स नीड टू अंडरस्टैंड द वर्कफोर्स एंड इकोनॉमिकल चेंजेस फर्स्ट। बिल्कुल। फिर इनको सबसे बड़ा एचआर प्रोफेशनल्स को जो समझने की जरूरत है कि व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज बिजनेस लाइक, और फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर में एचआर प्रोफेशनल्स को क्या करना है। ठीक है, देखिए, हम सब कुछ नहीं कर पा सकते, या वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। एचआर हैज अ पार्ट इन द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है, उसमें एचआर को ये समझना पड़ेगा उसकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो उसे करनी है। तो he has to be he has to have a futuristic approach, he has to think big, बड़ा सोचना पड़ेगा इसको ये छोटी मोटी हायरिंग फायरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल से बाहर निकल के ये सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर टैलेंट पाइपलाइन क्या है भी या नहीं है भाई। हमारी पॉलिसी प्रोसीजर्स आर ऑफ सच दैट कैन cater to globalization, that can attract the global talent. They can provide them the inclusion part, they can diversified, आप talent तो ले आएंगे, you need to provide them the inclusive part too. देखिए, आप शेर का बच्चा ले आए, अब शेर के बच्चे को आप वहां बकरी के बच्चे के साथ वही घास वास खिलाए, बेचारा वो 8-10 दिन में मर जाएगा, he will die. तो you have to provide him or her an environment जहां पे वो फ्लरिश कर सके, आगे बढ़ सके, अपना पूरा आउटपुट दे सके और एक्सेल कर सके। That we need to think on. And above all, यहाँ पे हमारे यहाँ एचआर प्रोफेशनल्स को ये सोचने की बड़ी जरूरत है कि इनका कोचिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो एरिया है, इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, अगर आप SHRM के वो BOC के एक हमारा पूरा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक कुछ डिफरेंट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एचआर प्रैक्टिशनर्स, एचआर प्रोफेशनल्स है, उनको अपना कोचिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाला जो एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और दे हैव टू कोच द स्टाफ एंड प्रोवाइड दैट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो दोनों को एक जगह लेके आ सकें। ठीक है, that's what my thing. हाँ, and above everything, हमें ये सोचने की जरूरत है कि नाउ प्रीवियसली देखें हम 50-50 पेजेस की प्रेजेंटेशंस देते थे, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ समरी। देखिए, ब्रीफली आप एक बात एक फिगर से कह सकते हैं। देखिए, लास्ट व्हाट आई प्रेजेंटेड टू माय बोर्ड, इट वाज प्योरली एनालिटिक्स। मैंने हर चीज की समरी दी उनको, which is completed in 10 slides. So people have to work on their analytics so that they can give more information in a less time. सही है, बिल्कुल। और दूसरा एक और इसमें आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी बकरी और शेर की। बात वही है कि हम ये कह रहे हैं कि हम पोलर बियर को ले जाकर अफ्रीका में छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल, मर जाएगा obviously. So you need to provide that environment that's good for its development. Simple सी बात है। तो ये बहुत ही important area है, और इसमें आपने you very rightly said, यहाँ पर जो public procurement sector है वहाँ पर बहुत ही important area coaching, mentoring
और इस चीज का होता है कि पूरे पूरे नेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसमें लोग जाते हैं, ठीक है, राइट बिल्कुल फ्रॉम जिस वक्त वो GCSE लेवल पे होते हैं, A levels लेवल पे होते हैं, उसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनको फ्लरिश किया जाता है, उनको जी प्रिपेयर किया जाता है. सो आई थिंक we need to think के these are the things that are coming up and we should be able to face that challenges. और दूसरा डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा आई थिंक ट्रेनिंग और क्लासरूम फेस टू फेस सेशंस से एसोसिएट किया जाता है, बट इट्स ऑलवेज अबाउट हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. जी, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स जी बिल्कुल, ऑन जॉब ट्रेनिंग, शेडोइंग, ठीक है. जी. तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो कि आई थिंक पाकिस्तान में एड्रेस करने की जरूरत है. है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट करूंगा इस पे जरूर. देखिए, अगर हम पोस्ट कोविड बात करें इन चीज़ों पे थोड़ा सा, तो देखिए अभी अगर मैं मुझसे कोई कहे कि डू यू वांट टू सेंड योर पीपल टू ट्रेनिंग जी. कोई फिजिकल, मैं कहूँगा नहीं. हम्म. आई लव टू रजिस्टर देम फॉर वेबिनार्स एक्सेट्रा. मैंने जो आपसे बात की ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारी लोगों से मेरी बातचीत भी चल रही है अभी. आई वांट टू हैव वन व्हिच इज वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट, बिकॉज आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह ही कर रहे हैं फिर हमेशा, क्योंकि इट्स नॉट फॉर नाउ, इट्स फॉर एवर नाउ. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है, बिल्कुल बिकॉज ऐसा इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव, ही. बिल्कुल. इसमें कन्वीनियंस है. ठीक है, इसमें आपको सारे के सारे रिजल्ट आपको मिल जाते हैं अपने लोगों के. यू कैन मेंटेन इट वेरी इजीली. उसमें आपके पास बहुत सारी, ना आप अपने स्टाफ को मॉनिटर कर सकते हैं, ना उसकी लर्निंग को मॉनिटर कर सकते हैं, ना आपको यू गेट एनी रिपोर्ट. सो the thing that you are talking about के ऑन जॉब ट्रेनिंग भी उस वक्त आपकी पॉसिबल हो पाती है जब आपका जो उससे अबव लेयर जो है वो इतना या ट्रेंड हो या एक्सपर्ट हो अपनी पोजीशन में, और इतना ग्रूम्ड हो कि he can be raised in designation. He can give space to his junior staff to come up to his place. तो ये भी बड़ी जरूरी है हमें बहुत. देखने की कि what kind of a talent we are flourishing at our setups, और वो क्या वो जॉब ट्रेनिंग्स या वो जॉब एक्सपीरियंस जो उसके नीचे वाले को जरूरत है वो उसको दे रहा है नहीं. वी नीड टू वर्क ऑन दीज सिस्टम्स टू. ये बहुत Obviously. जरूरी है. और वो कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है, जी बिकॉज जी the workforce get old, they do resign, जी. they do go. You need to Yes. have that business continuity. ये तो पार्ट होना चाहिए बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का. जी, सक्सेशन प्लानिंग जो आप कह सक्सेशन रही हैं. प्लानिंग बिल्कुल ऐसा ही है. तो बिल्कुल. अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि एक्चुअली सक्सेशन प्लानिंग पे ही है. अच्छा. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आपके ख्याल से जो एथिकल और इंटीग्रिटी है दैट इज वेरी चैलेंजिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन कंट्रीज, और पूरे वर्ल्ड में उसको क्वेश्चन किया जाता है. सो व्हाट आर द की challenges you think as a HR professional that prevails in Pakistan, और उसको अगर हम पूरा एक फ्रेमवर्क डेवलप करें सक्सेशन प्लानिंग का तो उसको इसमें इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है एथिकल और इंटीग्रिटी एस्पेक्ट को. देखिए, एथिकल क्या है? हम कहते हैं कि somebody has theft this, somebody has done this, इसने इंफॉर्मेशन की ले ली, इसने ये वो कर लिया. खैर इसकी डिफरेंट शेप्स है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर द डिफरेंट पीपल, एंड इट वेरीज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. मैं इसको लेके चलूंगा हमारे इस मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के बेसिस पे और हायरिंग से और डेवलपमेंट रिलेटेड. जो देखिए, हायरिंग रिलेटेड जो इंटीग्रिटी के इश्यूज हमारे होते हैं वो ये होते हैं कि भाई अच्छा आपको किसी ने रेफर किया कि यार इसको आप रख लो, ही इज वेरी गुड, अला ब्लाइंड एवरीथिंग. एज ए HR प्रोफेशनल आप उसको, अगर आप स्ट्रांग हो तो आप उसको कहते हो, पुश बैक करते हो, नहीं, ही इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पोजीशन एंड वी हैव टू सी समवन एल्स फॉर दिस पोजीशन. ये आप उस वक्त कर सकते हो जब आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स बड़े अच्छी तरह डिजाइंड हो. आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द जॉब एनालिसिस थिंग. अगर आपके पास एक पोजीशन की JD है, उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन सही दी हुई हैं, तो आप चैलेंज कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू डोंट हैव
such supportive documents with you. तो वो आदमी जो आपके पास किसी को लेके आया है, तो you have to hire him. Otherwise you cannot change, because you cannot challenge. आप किस बेसिस पे किसी को मना कर रहे हैं कि I will not hire him or her. देखें, ये प्रॉब्लम उस वक्त आते हैं जब HR प्रोफेशनल्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, उनके पास वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं होते. If you have a good and transparent system, if you have all the necessary documents that are needed for hiring, development, retention, and for their future growth and their career development. देखिए, आपके पास ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स, नो वन कैन चैलेंज यू. देखिए, जो भी चैलेंज करेगा वो एक्सपोज होगा. सही है. अब बात ये है कि हमारे यहाँ देखिए मोस्टली ये हो रहा है कि HR में अभी भी लोग लैक करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स पे. ठीक है, दे डोंट हैव प्रॉपर JDs बनी हुई है तो 1915 में बनी थी, अब 2020 है तो वही JDs चल रही हैं, बिकॉज यू नो पीपल आर नॉट लुकिंग एट, क्योंकि लोग खुद से करना नहीं चाहते, कंसल्टेंट्स की कॉस्ट वो बेयर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी है. TNA नहीं होते लोगों के पास, तो जो भी इनके पास रिक्वेस्ट आ रही होती है तो फिर TNA में भेजना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग डॉक्यूमेंटेड. फिर वो सही है जो डिपार्टमेंटल हेड कह रहा है, फिर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते. नहीं कह सकते, बिल्कुल. तो मैं कहूँगा यस, देयर आर एथिकल प्रॉब्लम्स जो कि हायरिंग पे या कंप्रोमाइजिंग हायरिंग पे होती है. ट्रेनिंग को जब किसी को भेजने की बात होती है तो वहाँ पे कंप्रोमाइजेस होते हैं. जब किसी की करियर डेवलपमेंट की या फ्यूचर ग्रोथ की या फ्यूचर एलिवेशंस की बात होती है, वहाँ पे कंप्रोमाइजेस होते हैं. बट ये प्रॉब्लम तो रहेंगे उस वक्त तक जब तक HR अपनी इन चीजों को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेगा कि कोई उसको चैलेंज करे, तो he or she is to face something should push back to such kind of a people. तो देखें, आपके सिस्टम्स को आपको इम्प्रूव करना. देखें है ना, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं वो भी ये जानते हैं कि ये चैलेंजेस तो हर जगह हैं. इनका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, एंड सॉल्यूशन इज दैट वी शुड फोकस ऑन आवर डॉक्यूमेंटेशन. बिल्कुल. अगर किसी बंदे की पोजीशन है तो उसका प्रोफाइल होना जरूरी है. बिल्कुल. क्या स्किल्स की जरूरत है, फ्यूचर में क्या जरूरत पड़ेगी. सक्सेशन प्लानिंग है, मेरे पास तो 3 साल का सक्सेशन प्लानिंग का डॉक्यूमेंट है मेरे हर इंडिविजुअल का, जो भी सक्सेसर है. कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के पास है ये हमें देखना होगा. तो आई थिंक पीपल नीड टू लुक एट, or I will specifically say the HR professionals need to look at what kind of documents they need to have. बिल्कुल, बिल्कुल. सो फ्रेमवर्क्स डेवलप करने की जरूरत है और उनको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, एविडेंस बेस क्रिएट करने की जरूरत है, जो कि आई थिंक इट्स अ वेरी बिग गैप एरिया अभी पाकिस्तान में. दूसरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सक्सेशन प्लानिंग से ही रिलेटेड है. सो हाउ डू यू थिंक सक्सेशन प्लानिंग कैन हेल्प इनटू क्रिएटिंग needful workforce which can be sustainable for the industry? है ना, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा है नहीं कि I should have a good succession planning into my company to ensure the business continuity. बिल्कुल. And to give the required growth to my business. मेरे पास कोई इसके अलावा नहीं है, कोई I haven't find any other way. देखें, मैं ये तो सोच सकता हूँ कि मैं इसको जाने दूं, उसकी जगह दूसरा बंदा लाऊं, उसकी रिटेंशन को भी इंश्योर करना मुझे जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देखें if it won't be there तो who will do that work. And मेरी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने नहीं खोला हुआ कि हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मैं नया आदमी रखता रहूं. तो I have to devise my talent pipeline in such a way कि इसमें हर वक्त उतने लोग मौजूद हों जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फीड कर सकें. बिल्कुल. और क्रिटिकल पोजीशंस को हैड कर सकें. बिल्कुल. इसके लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू डिवाइस अ बेनिफिट strategy, and I need to devise a plan for their retention to which I feel that they are critical for the organization. ठीक है, और मैं उनको competitive package दूं, ठीक है, उनको benefits दूं, उनको flexibility दूं so that they can groom, they can flourish into the company,
or they get all the required learning opportunities to be the successor of their supervisors. बिल्कुल So बिल्कुल I need to work on the thing. The कुछ points मैंने लिखे हैं. हमें flatter organizations पे काम करना चाहिए, ठीक है. हम्म हमें employee की retention पे काम करना चाहिए, so that we can build a good talent pipeline, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ. इनको public recognition देनी चाहिए, flexible working hours देने चाहिए, work life blending opportunities देनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनका commitment बढ़े organization के साथ. बिल्कुल We need to take care of their work life balance, etc. हम्म ठीक है. कोई छोड़ के क्यों जाएगा? If I am providing all the facilities, all kind of obviously opportunities, obviously all kind of a career, so he will not move. और मेरे यहाँ बिल्कुल it's very good. मेरे यहाँ retention is very good. बिल्कुल और ये whys को अंडरस्टैंड करना कि why if you have a high turnover वो क्यों हो रहा है, it's very important for organizations Very and very now it's very a good. part of social audits as well. हम जब कहीं social audit कर रहे होते हैं, so we Hmm. ask them that what is your turnover rate, and then Hmm. why it's like that. Can we have a look at your sickness absence report? Can we have accident report? Can we have this and that? The reason to have a look at all of that documentation is to find out those whys. So it's really important. This information is a very important tool to जी, understand. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बात is very good, तो मैं थोड़ा सा आपको अपना experience बताता हूँ. When I joined this organization in 2008, तो यहाँ पे कुछ चीजें नहीं थी. जाहिर सी बात है, उनकी डेवलप करना था, उसीलिए आई वाज हायर्ड. वन वाज द एग्जिट इंटरव्यू का कोई सिलसिला हमारे हाँ यहाँ नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. तो टर्नओवर भी होता, तो मैं बोलता यार व्हाट आर द रीजंस व्हाई द पीपल आर लिविंग. बोला सर तो नहीं पता. मैंने बोला पता क्यों नहीं है? डोंट वी हैव द एनी मैकेनिज्म जहाँ ये हो? देन वी हैव स्टार्टेड दिस एग्जिट इंटरव्यू. मैं देखता हूँ जो एग्जिट इंटरव्यू मेरा 2008 में हुआ था, वहां जो लोगों के जाने की रीजन थी, और आज जो लोगों की जाने की रीजन है, इट हैज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस. बिल्कुल लोग पहले ऐसा मुझे ही है कहते थे बेनिफिट अच्छा नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. अब लोग मुझे दूसरी बात करते हैं. लोग मुझे कहते हैं कि आपके यहाँ ये नहीं है, आपके यहाँ ये होना चाहिए. तो इट कीप ऑन इम्प्रूविंग बिल्कुल माय एरिया, और मेरा बेंचमार्क भी बढ़ता जा रहा है बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ऑटोमेटिकली. मुझे कुछ इट्स करने की जरूरत नहीं है. डेवलपमेंट मुझे सिर्फ हर 3 महीने में वो जो एग्जिट इंटरव्यू के वो जो आए हैं वो मैं रीड कर लूं, तो बिल्कुल मुझे पता चल जाएगा what you इंडस्ट्री में need मैं to do. कहाँ खड़ा हुआ हूँ. बिल्कुल ऐसा ही है ठीक वेरी है ना गुड इट्स अ वेरी गुड जी. एग्जांपल बिल्कुल एंड लाइकवाइज यू कैन इम्प्रूव. तो आपकी मेरी बात बहुत सही है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीजन व्हाई पीपल आर बिल्कुल लिविंग टू अस. बिल्कुल अब सही हमारे पास पता होगा तो देन वी कैन एड्रेस इट. So that's बिल्कुल very true, and that's what I have done in the past. बिल्कुल so thank you so much Jumani. We are Junaid, we only have 5 more minutes, Hmm. less than 5 minutes actually, so I would like to wind up this session and I would like to just scope it into a very summarized way that workforce succession planning looks like a key for a futuristic development of Pakistan. True, Yes, it's true. really important that we harness on our talent and we understand the new skill-based framework that is coming up in this world. Very yes. Okay. And the third thing is that yes, you do have a lot of workforce, but it's about how you capitalize on that resource because human are resource. China Hmm. की पूरी development is because they have a lot of manpower. अब उस Hmm. man को power में कैसे create करना है, that's up to us. We एक need to मिनट think मुझे about आपका यहाँ चाहिए होगा. अच्छा, आपने शुरू में भी ये बात कही थी, एंड यू आर वेरी राइट. आई एम एसोसिएटेड विद एन एनजीओ. और देखें, आप बहुत सही कह रही है. हमारा जो मोस्ट ऑफ हमारा जो वर्कफोर्स है वो यंग है, it. ठीक है. अगर मैं अपने कंपनी की बात करूं तो हम भी कोई 80% ऑफ माय माय स्टाफ इज इन 25 to 30 years of age. बिल्कुल ठीक. तो हमने क्या किया कि वो लोग जो पढ़ नहीं पा रहे थे या मैट्रिक के बाद उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वी सेंड देम फॉर अ टेक्निकल ट्रेनिंग. that's very good. ठीक है. बिल्कुल देखिए, हमारे यहाँ एज अ कंट्री वी नीड टू थिंक हाउ दे कैन बी मेड प्रोडक्टिव.
बिल्कुल चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने अपनी इसी रिसोर्स को या इसी स्ट्रेंथ को दे हैव टर्न इनटू देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। बिल्कुल ऐसा ही वो है, इतनी बिल्कुल ऐसा ही इतनी मैस प्रोडक्शन में डाल दिया कि कोई इनको प्राइस में कॉम्पीट ही नहीं कर है। पाए। नहीं कर सकते। So yes, you are very right. We need to think on these lines, and हाँ, we need to turn to our this resource into a valuable resource. बिल्कुल ऐसा ही है, आप इनको बिल्कुल ऐसा छोड़ देंगे तो ये तो they will be free to do anything. बिल्कुल। और वो If सोशल और you इकोनॉमिक बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। सो इट्स जी अबाउट बिल्कुल किस तरह से आप उस अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करते हैं, दैट विल बी जी द की। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच जुनैद, इट वाज वेरी फ्रूटफुल टू हैव योर इनसाइट्स एंड इट वाज वेरी फ्यूचरिस्टिक thoughts that you have shared with us. I hope our viewers have also enjoyed this session. So thank you very Uh, much. Hina, I would like to thank you, Positive Impacts, and the entire team who have arranged this session, and all the participants who have spared time to to attend this session. Thank you very much to you and everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you.